Inflation will always be caused by these change in money supply only, but whether that inflation will be proportionate to the change in money supply or not, that will depend on the condition of level of level of employment in the economy. If it is full employment, then the whole of the change in money supply will get converted into inflation. पूरी की पूरी money supply inflation में convert हो जाएगी. But if it is before full employment, अगर before full employment है, then the some portion of the money supply will get reflected in the form of increase in prices. Prices के increase में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा. So according to monetarist, it is only one factor which is responsible for the inflation in any country, that is money supply. Money supply ही responsible है, right? So secondly, according, because monetarist की जब हम बात करते हैं तो फ्रीडमैन was known as great monetarist. So फ्रीडमैन का ही व्यू mainly इसके अंदर हम करते हैं. So according to फ्रीडमैन, in his words, inflation is always and everywhere a monetary phenomena that arises. क्यों ये होता है money supply की वजह से? That arises from a more rapid expansion in the quantity of money than in total output. अगर money supply में increase जो है वो total supply goods की supply से ज्यादा हो, faster हो, then it results into inflation. ये inflation जो है create करता है, right? That means according to Friedman, level of economic activity and inflation, any kind of economic activity including inflation, is get affected by one factor, and that factor is stock of money. If we increase the stock of money, it will affect the level of economic activities as well as inflation in the economy. And if we reduce the stock of money, then it will affect the level of economic activity as well, reduce the level of inflation, deflation create करेगा अगर हम stock of money को reduce करते हैं. That means it is only changes in the money supply which is responsible for change in economic activity as well as change in price level in the economy. Right? Now he explains. Excuse me, ma'am. हाँ जी. अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो इससे ही इज आल्सो सेइंग कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंज आएगा, मतलब अगर इकोनॉमिक before, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. अगर बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है तो इससे क्या होगा? आउटपुट भी इंक्रीज होगी. अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे, then due to that rate of interest will fall, then investment expenditure will increase, which will further increase the level of output in the economy, जो level of output को economy में increase करेगा, right? But secondly, this is the impact on the economic activities पे भी impact आएगा, but that depends that if the rate of increase in output is equivalent to the rate of increase in money supply, और money supply में जो increase हुआ है वो equivalent है rate of output के, then we will not face the problem of inflation in the economy. But if the rate of increase in output is less than the rate of increase in the money supply, then that means आपकी मनी सप्लाई ग्रेटर रेशियो से इंक्रीज हुई है लेकिन आउटपुट आपकी सेम रेशियो से इंक्रीज नहीं हुई है, then we will face the problem of inflation in the economy. But he says that, हाँ जी मैम, आउटपुट जब इंक्रीज होगा तो मैम उसका कुछ पार्ट एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज में जाएगा, कुछ पार्ट एग्रीगेट डिमांड में भी जाएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड भी तो इंक्रीज होगी. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड ही इंक्रीज हो रही है उससे, because investment expenditure is a part of a aggregate demand, and उसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा. तो aggregate demand will increase, aggregate supply will also increase, but he says that if the money supply is more, अगर money supply ज्यादा है इकोनॉमी में और उसके रिजल्ट से प्रोडक्शन कम है इकोनॉमी में, दैट मीन्स मनी सप्लाई अपने इंक्रीज कर दिया, एक्सपेंशन हो गई इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट हो गया, उसकी वजह से इनकम लोगों के पास आ गई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, लेकिन आपकी आउटपुट सेम रेट से इंक्रीज नहीं हुई. अगर आपकी आउटपुट सेम रेट से इंक्रीज नहीं होगी, देन इन दैट केस
your prices will shoot higher as compared to your output. आपकी output कम rate से increase हुई, लेकिन आपके prices ज्यादा बढ़ जाएंगे. Okay, ma'am. Ma'am, ये this is applicable to before full employment only, ना? This is before full employment, लेकिन after full employment तो है सिर्फ prices में ही increase होगा, because aggregate supply cannot be increased further after full employment situation. Okay, ma'am. Right? So then whole of, अब इसको हम करते हैं कि monetarist, और monetarist क्या है, सिर्फ एक ही monetarist view जो है, that those are strictly monetarist in their view, and they say that only reason for this is that we are following the type of a policy regarding money supply. अगर money supply की policy इस तरीके से discretionary है कि कभी हमने बढ़ा दी, कभी हमने घटा दी, then it will affect the prices. Or and according to them, it is only money supply which is responsible for inflationary pressures in the economy. तो वो सिर्फ money supply, इसको सिर्फ purely वो monetary phenomena ही मानते हैं. They don't relate with it any other cause. ये किसी और cause के साथ इसको relate नहीं करते हैं. Right? ये हमारा basically monetarist point of view है, जो फ्रीडमैन और उसके फॉलोअर्स देते हैं. So इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं. पॉइंट हमारा जो अल्टीमेट क्रक्स है इस थ्योरी का वो यही है कि ओनली मनी सप्लाई इज रिस्पॉन्सिबल. अब ये कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा मनी सप्लाई की वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे करते हैं अभी. वो इसका सोल्यूशन देते हैं कि अगर वो कहना है कि मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए वो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अगर मनी सप्लाई. They say that rather than following the discretionary monetary policy, that means discretionary monetary policy means कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद डिसीजन ले रहे हो कि कभी 10% बढ़ा दी, कभी 5% बढ़ा दी. They say that discretionary monetary policy यूज करने की बजाय या मनी सप्लाई को यूज करने की बजाय it should be on the basis of a rule of thumb. Rule of thumb means फिक्स कर लो कि every time money supply every year will increase by 5% only. और थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी के लिए हेल्दी भी होता है, that won't be problematic. लेकिन अगर हमें हाइपर इन्फ्लेशन या हमें बैड इन्फ्लेशन से बचना है, तो फॉर दैट the type of a discretionary policies, monetary policies should be avoided. जो discretionary monetary policies हैं या money supply है जो judgment की basis पे ली जाती हैं, those should be avoided. वो avoid करनी चाहिए, because according to them when the authorities interfere with their own judgment in the economy, so mostly those judgments are wrong. तभी वो government interference को बहुत ज्यादा support नहीं करते हैं, जो monetarist हैं वो बहुत ज्यादा support नहीं करते हैं. and they say कि इसकी वजह से इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आता. अगर हम इस तरीके से अपनी जजमेंट या डिस्क्रिशन लगाते हैं, इकोनॉमी को हम खराब ही करते हैं ऐसे करके. सो रादर देन सर्टेन काइंड ऑफ रूल शुड बी फॉलोड. डिस्क्रिशन की बजाय रूल शुड बी फॉलोड, रूल्स फॉलो होने चाहिए. And for the output and all these expansion in the economy, that rule based policy should be adopted. Okay, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरह वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को ही सपोर्ट करते हैं. और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल है उस इकोनॉमी को सपोर्ट करना. एंड रादर देन गोइंग फॉर अ डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज, दे शुड फॉलो अ रूल बेस्ड पॉलिसीज. रूल बेस्ड पॉलिसीज फॉलो होनी चाहिए. राइट? मोस्टली मॉनेटरिस्ट जो है वो क्लासिकल्स को फेवर करते हैं बेसिकली. राइट? सो इसी चीज को, इसी थॉट को जो है एक्सप्लेन हम इस डायग्राम से कर रहे हैं. यहाँ पे हमने डायग्राम ले लिया which is given by the monetarist. right? यहाँ पे this is income, here we take rate of interest, this is IS curve, ये हमारा IS curve है, and this is LM curve, ये हम already कर चुके हैं, where IS curve is equal to LS IS curve, ये हमारा equilibrium output आ गया, and this is rate of interest. right? and this इसी चीज को हम एक तो हम ISLM मॉनेटरी और प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम एक साथ शो कर रहे हैं. लेकिन प्रोडक्ट मार्केट जहां इक्विलिब्रियम है IS0, दैट मींस वहां पे हमारी
दिस इज सपोज आर एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। ऑटोमेटिकली आईएस का हर पॉइंट जो है वो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में इक्वालिटी शो करता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और एलएम कर्व का हर पॉइंट जो है वो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी में इक्वालिटी शो करता है। अगर y0 हमारी आउटपुट आ रही है, दैट मींस प्रोडक्ट मार्केट में एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, इस लेवल ऑफ आउटपुट पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये डिमांड है। एंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ये हमारा जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी में। इज दैट क्लियर? यस मैम। Right? Now suppose if there is increase in money supply, अगर money supply जो है हमारी increase हो जाती है, then this curve LM curve will shift from LM to LM1, expand हो जाएगा, हमारा LM1 पे shift हो जाएगा क्योंकि money supply जो है वो increase हो गई है, right? Due to this we can see that when there is increase in money supply, due to increase in money supply, the rate of interest will fall from R0 to R1 because of that expenditure will increase in the economy, investment will increase in the economy, then output will increase in the economy from Y0 to Y1, right? So when output will increase, investment expenditure will increase, aggregate demand in the economy will increase. So we can see because of this equilibrium point E जो y0 पे था now has shifted to y1, and this aggregate demand curve will also shift from AD to AD1. aggregate demand curve जो है हमारा due to this increase in money supply, rate of interest fall किया, rate of interest की वजह से investment expenditure बढ़ा, right? investment expenditure बढ़ा, aggregate demand जो था हमारा वो AD से AD1 पे shift हो गया। So point of equilibrium has shifted from E to E1, and price level has also increased from P0 to P1। जो प्राइस लेवल है वो भी P0 से P1 इंक्रीज हो गया, राइट? सो टिल द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इस पॉइंट तक, ये यहाँ तक हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है। ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइसेस एज वेल एज देयर विल बी इंक्रीज इन आउटपुट लेवल आल्सो। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो वी कैन सी कि आउटपुट जो है वो ज्यादा, दैट मींस प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ी है, आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हुई है, और प्राइस लेवल जो है वो कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हुआ है। जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है उसमें हम ये देख सकते हैं, राइट? बट इफ प्राइस ज्यादा कब इंक्रीज होगा? इफ द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन आउटपुट इज लेसर, अगर कम है देन द प्रेशर ऑन प्राइसेस विल बी हायर, जो प्रेशर है प्राइसेस में वो हायर होगा, प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज होंगे। एंड बियॉन्ड दिस फुल एम्प्लॉयमेंट, if there is increase in demand due to the expansionary policy की वजह से डिमांड इंक्रीज होती रहती है, then there will be only increase in prices, there will be full inflation in the economy, and there will be no increase in output में कोई increase नहीं होगा। So this is why this is how monetarist explain this thing। अभी क्लासिकल से कहां से, नो डाउट क्लासिकल्स को सपोर्ट करते हैं मॉनेटरिस्ट, बट क्लासिकल्स कहते हैं कि देयर विल बी नो इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज दे अज्यूम कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो नॉर्मल सिचुएशन होती है, एंड देयर विल ऑलवेज बी 100% प्रेशर ऑन द प्राइसेस व्हेनेवर money supply will be increased. But monetarists say that there will be impact on economic activities also if we are on a before full employment situation, prices and output will both increase, but that depend on the productivity of increase in output, that how much prices will increase. If the rate of increase in output is higher, then lesser pressure will be on prices, and if the rate of increase in output is lesser, then higher pressure on prices will be there, and after full employment there will be full-fledged inflation, whole pressure will be on prices, जो सारा pressure है वो prices पर आएगा, right? यही same चीज हम equation के through explain करें। हाँ जी
मैम इस डायग्राम में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आउटपुट में इंक्रीज है, दैट इज व्हेन द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल? क्या क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉरी मैम, जैसे आउटपुट कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए एट अ हायर रेट अगर हमें प्राइसेस सप्लाई, यस, अगर आउटपुट जो है अगर वो सेम रेट से इंक्रीज हो रही है जितनी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट? सो इन दैट केस इस उस पर्टिकुलर केस में प्राइसेस पे जो है आपका प्रेशर कम होगा और आउटपुट ज्यादा इंक्रीज होगा। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में बाय चांस हमने जो ये डायग्राम बनाया है उसमें वी कैन सी ये जो गैप है आउटपुट का, तुम ये देखोगे ज्यादा आ रहा है और ये जो गैप है दोनों प्राइसेस का ये कम आ रहा है। तो इस डायग्राम से हमें ये दिख रहा है कि आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हुई, ड्यू टू दैट जो प्राइसेस में है वो कम इंक्रीज आया है। मैम एलएम कर्व से पता लगा, हम एलएम कर्व को जितना ज्यादा हमने एलएम कर्व को शिफ्ट किया ना, हाँ, एलएम कर्व को तुम जितना ज्यादा शिफ्ट करोगे आउटपुट उतनी ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखेगी, डिपेंड। और दूसरा तुम्हारी एग्रीगेट नहीं, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि गैप हमने कैसे ज्यादा रखा इस डायग्राम के हिसाब से? एग्रीगेट गैप के अकॉर्डिंग ही हमें गैप से ही पता लगेगा कि लेबर मार्केट में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कम इफेक्टिव है यहाँ पे। उसके लिए क्या करोगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा बेटा वो, राइट? तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अगर मैं ज्यादा इलास्टिक बनाऊंगी तो यहाँ ज्यादा चेंज आएगा और यहाँ कम चेंज आएगा, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अगर मैं कम इलास्टिक बनाऊंगी तो तुम देखोगे यहाँ कम चेंज आएगा और यहाँ ज्यादा चेंज आएगा। दैट मीन्स तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई जो आउटपुट है वो हाईली इलास्टिक है, मीन्स वो ज्यादा रिएक्ट कर रही है, वो ज्यादा थोड़ा सा ही मनी सप्लाई आपने चेंज किया उसने ज्यादा रिएक्ट किया, राइट? सो आपकी आउटपुट जो है दैट मीन्स आपके थोड़े से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉल होने से आपकी जो आउटपुट है वो ज्यादा चेंज हो गई, और अगर आप इसको लेस इलास्टिक बनाओगे दैट मीन्स चेंज होने से जो आउटपुट है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व की स्लोप जैसी तुम बनाओगे वैसा तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट नजर आए। ओके मैम, मैंने थोड़ा ये फ्लैटर बना दिया था इसलिए मेरे को रिजल्ट ऐसा नजर आया कि आउटपुट ज्यादा चेंज हुई और प्राइस कम चेंज हुआ है, तो मेरा यहाँ पे रिजल्ट ये निकला दैट the change in output is more than the change in money supply, that is why prices पे कम इफेक्ट गया और आउटपुट ज्यादा चेंज हुई है। लेकिन अगर मैं बाय चांस ऐसा कर्व बना देती तो ऑटोमेटिकली मेरा तब रिजल्ट ये निकलता कि आउटपुट हैज रिएक्टेड इन अ स्लोअर मैनर, तो आउटपुट कम प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हो गए। मैम फिर इसमें भी तो स्ट्रक्चर वाली बात आ रही है ना कि अगर मेरा आउटपुट फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, तो प्राइसेस में कम चेंज आएगा, और अगर रिजिड है, इन इलास्टिक है, तो प्राइसेस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। इसने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेट किया है कि हाउ मच इलास्टिक इज द सप्लाई टू इन्वेस्टमेंट इज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा इलास्टिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो उस केस में हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अगर कम इलास्टिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो जो हमारा आउटपुट है उसमें हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो एसएसटी पर बनेगा। सो वो उसको स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, वो उसको प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना के साथ रिलेट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी फिनोमिना, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मॉनेटरी फिनोमिना है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज होगी, कितना रिएक्ट करेगी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और वो ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट हाउ मच चेंज इन आउटपुट विल अल्टीमेटली कम, ऑन दैट दिस चेंज विल इफेक्ट। वो उसको स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, वो इसको रिलेट कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई इनमें आपस में कितना रिलेशन, कितना फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। एंड सेकेंडली दूसरा क्या है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं दे आर इलास्टिक इन नेचर, अगर वो बहुत ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल हैं, देन ड्यू टू दिस ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो इलास्टिक नेचर का होगा। लेकिन अगर हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हाईली इलास्टिक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो बॉटलनेक्स हैं, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो प्रेशर है हमारी प्रोडक्शन साइड वो ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से जो कर्व है वो इस तरीके का होगा।
इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज नॉट बिकॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज, इट इज सिंपली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी फिनोमिना, दैट हाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट, हाउ द इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड विद द आउटपुट, इन्हीं रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा है, बट they don't include structural rigidities in this, right? No doubt ultimate ये दो point of view, ultimately जब हम मॉडर्न थ्योरी करेंगे तो तुम मॉडर्न थ्योरी में देखोगे कि मॉडर्न थ्योरी इन सारे फैक्टर्स को एक साथ इंक्लूड करती है कि इन्फ्लेशन इज नॉट प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिना, इन्फ्लेशन इज नॉट प्योरली अ स्ट्रक्चरल फिनोमिना, इन्फ्लेशन इज नॉट प्योरली अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स का ही ये कॉम्बिनेशन होती है, वो मॉडर्न थ्योरी में इन सबको हम क्लब कर देंगे। यस मैम, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट हाईली इलास्टिक है और हम इंक्रीज हो जाएगी, तो मैम हम इन्वेस्टमेंट लेबर की प्रोडक्टिविटी में भी तो लगा सकते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर में चला जाएगा। वही ये तो एक तुम्हारा जनरल व्यू हो गया ना कि नहीं स्ट्रक्चर भी, यस दिस इज एक्चुअली हैपन, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक मॉनिटरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, और मॉनिटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि अगर हम अपनी मनी सप्लाई को ढंग से नहीं रिलेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से ही इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है, ये मॉनिटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यस इन रियलिटी स्ट्रक्चरल, डिमांड फैक्टर्स, सप्लाई फैक्टर्स, मॉनिटरी फैक्टर्स, ऑल दीज वर्क टुगेदर। यस मैम, राइट, रियलिटी में ये होता है, और ये क्रिटिसिज्म हो गया इसका कि मॉनिटरिस्ट जो थियरी है दे ओनली फोकस ऑन मनी सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन, बट इन मेनी कंट्रीज when there is no increase in money supply still they face inflation, then monetary policy fails to explain that reason, वो उसका क्रिटिसिज्म हो गया। ओके मैम, राइट, सो यही चीज अब हम यहाँ पे करते हैं कि वो इक्वेशन में इसको कैसे दे से दैट डिमांड फॉर मनी is equal to supply of money at equilibrium, equilibrium के में ये दोनों एक दूसरे के equal होते हैं। So demand for money को वो कह रहे हैं, demand for money is basically price, कितना demand for money होगा that depends on the price level कितना है, how much is the level of output in the economy, output कितना है, and beta जो हम यहाँ पे beta ले रहे हैं, this is income elasticity of demand for money, that means this y is representing the level of output or income in the economy and how much portion of level of income or output get converted into demand for money, वो हम इस बीटा से ले रहे हैं। So beta is basically known as income elasticity of demand for money, ये हमारी income elasticity of demand for money है, right? So demand for money is equal to PYB, हम PYB ले रहे हैं। So and at equilibrium level supply of money is equal to demand for money, demand for money के equal है। So what is demand for money? Demand for money is PY, then we can write down that at equilibrium supply of money is equal to PYB, right? Now we will differentiate this equation with respect to time, अगर time के साथ इसे differentiate करें तो ये हमारा हो गया DMS with respect to time, right? That means money supply को जब हम with time change कर रहे हैं, this will be equal to, ये हमारी आ गई, फर्स्ट हम करेंगे y b dp dt, पहले हमने p प्राइस को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लिया, देन प्लस p y को करेंगे अब, दिस इज बीटा y 1 माइनस बीटा dy dt। आई होप तुमने सबने थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लिया हुआ है। मैम बीटा माइनस 1 नहीं आएगा, सॉरी, हाँ सॉरी पावर में आएगा बीटा माइनस 1, यस पावर में इट विल बी बीटा माइनस 1, इज दैट क्लियर? राइट, नाउ वी विल डिवाइड बोथ दिस साइड विद सप्लाई ऑफ मनी, अगर इसको सप्लाई ऑफ मनी के साथ डिवाइड करें तो ये हो गया 1 अपॉन एम एस डी एस डी टी, सॉरी डी एम एस डी टी, राइट? दिस इज, जब हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं
This is rate of growth. This is known as, इसको हम क्या कहते हैं? This is known as rate of growth in money supply with time. ये हमारा rate of growth आ गया. Originally it was MS and this DMS representing change. इसको हम कहते हैं proportionate change. जब तुम elasticity करते हो तो उसमें पढ़ते हो ना, change in quantity divided by quantity. This is representing the proportionate change in quantity. Yes, ma'am. Right? So when we divide it with money supply, then it becomes 1 upon MS DMS DT, which is representing the rate of growth in money supply. And what is the rate of growth in money supply? Is equal to 1 upon MS DT. तो इस साइड को भी MS से अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे देखो MS is equal to PYB. ये बीटा, ये हमारी MS. हाँ जी मैम, ये लास्ट वाली इक्वेशन कैसे आई है? 1 upon MS D MS upon DT. ये वाली, ये हमने क्या किया? डिवाइड द इक्वेशन, ये हमने किया है स्टेप, डिवाइड द इक्वेशन विद MS. राइट मैम, जिसको स्क्वायर में डाला है उसको ना, ये वाला, जब ये दैट मीन ये वाली इक्वेशन को मैंने फिर MS से डिवाइड किया, तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, तो ये बन गया 1 upon MS DMS DT. दिस, इसको अगर इंटरप्रेट करूं तो इंटरप्रिटेशन में ये है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई. इस पूरी इक्वेशन को करूंगी मैं अभी डिवाइड. दिस होल इक्वेशन विल बी डिवाइडेड विद MS के साथ डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को. राइट? यस मैम. नाउ डिवाइड करके ये वाला रिजल्ट तो नहीं आएगा, बट 1 यही आएगा. अभी देखो यही आएगा जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. राइट? तो दिस इज 1 अपॉन, इसको अगर मैं DMS, या मैं रफ में कर रही हूँ, DT डिवाइडेड बाय MS करूं, अगर मैं इसको ऊपर लेके चली जाऊं तो ये 1 अपॉन MS नहीं हो जाएगा ये वाला पोर्शन. अच्छा, आपने लेफ्ट साइड लिखी है, अभी राइट साइड. हाँ, उस तरफ लेगी ना मैं उसको. ठीक है? सो दिस, अगर मैं इसको डिवीजन वाली पॉइंट को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊं तो ये 1 अपॉन MS हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. यस मैम. राइट? सो दिस इज 1 अपॉन MS DMS DT. दिस इज, इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो दिस इज rate of increase in money supply with time. This is the interpretation. Right? अब इस साइड ये वाली राइट हैंड साइड को डिवाइड करते हैं MS से. राइट? सो अब इसको अगर डिवाइड करो तो MS की वैल्यू इज इक्वल टू PYB के इक्वल है. राइट? तो अगर अब Y बीटा DP DT, ये फर्स्ट वाला जो है, अगर इसको मैं PYB से डिवाइड करूं तो Y बीटा आपस में कट जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we will left with 1 upon P, नीचे P रह जाएगा, DP DT. अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस विद टाइम. मैम, हमने लेफ्ट साइड को MS से डिवाइड किया और राइट साइड को MS की वैल्यू क्या है बेटा? MS इज इक्वल टू PYB. अच्छा, तो मैम उस साइड पे हम PYB ले लिया. ओके. राइट? सो प्लस, अब इस पोर्शन को देखो, ये जो सेकंड पोर्शन है, इसको जब मैं PYB से डिवाइड करूं तो इसमें PP आपस में कट गया और इसमें हमारा Y बीटा आपस में कट गया. Y माइनस 1 मेरे पास रह गया. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सो जब Y माइनस 1 है तो मैं 1 अपॉन Y लिख सकती हूँ उसको, क्योंकि -1 उसकी पावर बची है. सो आई विल राइट डाउन इट एज 1 अपॉन Y dy dt. This is rate of growth in output. So this is rate of growth in money supply is equal to rate of growth in money supply is equal to, in equilibrium, is equal to rate of growth in prices plus rate of growth in output. That means जब भी हम money supply को increase करेंगे, with time when money supply will increase, it will affect the prices को change करेगी and it will affect the output level. ये output level को affect करेगी. So ultimately how much will be the inflation? This 1 upon P DP DT, which is rate of increase in prices, it is representing inflation.
मैम हाँ जी, मैम वो बीटा जो कोफिशिएंट था y बीटा -1 का हाँ, वो हाँ, हाँ। बन गया। वो y बीटा आपस में कट डाउन हो गया ना। अगर मैं y मैम वो तो बीटा, पावर में मैम वो तो पावर में कट डाउन हो गया ना, बट मैम उसका कोफिशिएंट भी तो है बीटा y बीटा -1। अच्छा ये बीटा की बात, ये वाली बीटा की बात कर रहे हो? हाँ चलो इसको हम यहाँ पे लिख यस वी कैन कीप इट ओवर हियर बीटा, राइट? यस मैम। So it is rate of growth in output. ये rate of growth in output हमारे पास आ गया. Ultimately that means we are representing that rate of increase in money supply has resulted into rate of growth in inflation, which is price level, plus rate of growth in output. So how much will be the inflation? So it will be 1 upon P dP dt is equal to 1 upon ms dms dt, which is rate of increase in money supply with time, minus beta 1 upon y dy dt, which is representing rate of growth in output with time. So इनका जो gap है, on the basis of that gap, हाँ जी मैम इस इक्वेशन में जो हमने इसको डिवाइड किया था पी वाई बीटा से, मैम वो तो उसकी पावर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगी ना मैम, बट पी वाई बीटा तो रह नहीं जाएगा उसके साथ, पी वाई बाई डी टी के साथ। ये पी भी तो आपस में कट हो गया ना बेटा, ये पी और ये पी ये आपस में कट डाउन हो जाएंगे मैम, क्योंकि हम उसको वो नीचे हम डिवाइड कर रहे थे तो उसकी डिवाइड कर रहे थे, -1, तो उसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा मैम, बट वो पूरा तो रह ही जाएगा ना। y की पावर बीटा है मुस्कान, तो वो माइनस बीटा हो जाएगा पावर में माइनस बीटा हो जाएगा हमारा, ये कह रहे हो? मैम नो, वो बीटा नहीं रहेगा ऊपर पावर में उसकी। बट बीटा हमने y बीटा को तो कट कर दिया ना, y बीटा से हमने कट कर दिया, वी आर लेफ्ट विद y -1 हमारे पास रहा। मैम आई विल चेक मैम, ठीक है अभी कर उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है? So ultimately we are left with this thing. So that means ultimately ये portion क्या show कर रहा है? This portion is representing the rate of growth in output. This portion is representing rate of growth in money supply. If the rate of growth in money supply is more than the rate of growth in output, then for that difference will result into the rate of growth in prices. अगर ये गैप ज्यादा होगा, अगर आउटपुट कम इंक्रीज हो रही है और मनी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो हायर इन्फ्लेशन होगी, और आउटपुट अगर ज्यादा इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर इक्विवेलेंट इंक्रीज है, देन जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? और मैम अगर मतलब आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हुआ तो डिफ्लेशन हो गया। हाँ, मतलब फिर प्राइस कम हो जाएंगे, मतलब प्राइस कम हो जाएंगे तो डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ मैम, ये बीटा को सिग्निफाई कर रहे हैं? बीटा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी, बीटा हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी है, दैट हाउ मच, राइट? जो हमने कहा कि ये कर्व इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, तो ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, right? So this was basically monetary theory. So ultimately that means monetary theory हमारी explain क्या करती है? Ultimately monetary theory का crux यही है कि it is the difference between the rate of increase in money supply and rate of increase in output which basically creates inflation. ये crux है. Is that clear? Yes ma'am. बट वी कैन क्रिटिसाइज दिस theory, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये थ्योरी मनी सप्लाई के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर करती है। इट इज ओनली considering that it is only the quantity of money, it is only the stock of money which is the major factor to cause inflation, and but in reality there are several factors which are working from demand side, some are working from supply side, all these generate inflation, but this approach overlook all those elements। जो तुमने अभी कहा कि बहुत सारे इसमें तो structural changes भी responsible हैं, yes they are responsible, but this theory ignores that, इस चीज को ये ignore कर रही है। जैसे हमने कहा कि कई जगहों पे despite of fixed supply of money there is increase in money supply, but monetarist approach cannot explain that situation, उस situation को explain नहीं करती है।
right? Then these are basically the main and secondly, this theory believes that money supply is an exogenous factor. जैसे हमने discuss किया था कि it believes that it is a exogenous factor, and this type of a problem arises because the authorities follow the discretionary monetary policy, क्योंकि वो discretionary policy follow करती हैं, and because of that this type of a problem of inflation gets generated. But money supply is not only an exogenous factor. As we know, money supply is created by the commercial activities. Economic activities also creates the money supply. Like for example, the activities of commercial banks, non-banking financial institutions, they even also create the money supply. जो हम broad definition of money supply करते हैं, so that money supply is not created by the policy of the monetary authority, but that money supply is created by the economic activities. वो economic activities create करती हैं, but that this monetary view does not take that into consideration. So that is again a major goal of this particular theory. And the process of inflation is also is affected also by structural and institutional factors, which has been ignored by this particular theory. So this was our monetary theory of inflation. ये हमारी monetary theory of inflation थी. कल हम modern theory of inflation करेंगे, and then उसके बाद हम Phillips curve करेंगे डिटेल में, right? मैम मतलब वो जो एक्स्ट्रा